اصطلاحی معنوں میں ناول وہ قصہ یا کہانی ہے جس کا موضوع انسانی زندگی ہو، یعنی انسانی زندگی کے حالات و واقعات اور معاملات کا انتہائی گہرے اور مکمل مشاہدے کے بعد ایک خاص انداز میں ترتیب کے ساتھ کہانی کی شکل میں پیش کرنے کا نام ناول ہے۔ اسی طرح کسی انگریزی زبان کے ناول کو اردو کے پیرائے میں ڈھالنا میرے نزدیک ناول لکھنے سے بھی دشوار اور مشکل کام ہے، کیونکہ اس کام میں اصل ناول کی روح، اس کے پس منظر اور اس کے کرداروں سے رونما ہونے والے جذبات کے ساتھ انصاف کرنا اہم اور اولین فریضہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اظہر حیات صاحب کا ناول آتش فشاں اس فریضے کی نظیر اور حب الوطنی کے پاکیزہ جذبات کا شاہد ہے۔ ڈاکٹر اظہر حیات صاحب کے ساتھ حادثہ پیش آنا، دوبارہ گھر میں حادثے کی وجہ سے گھر میں ہی قید ہونا، کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ اور اس کام کا بھارت چھوڑو تحریک کے بالکل 75ویں سال پر مکمل ہونا بھی صرف اتفاق نہیں، آپ کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ابھے جو 1974 سے باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا، آج ابھے ان کے اندر سے کسی آتش فشاں سے نکلنے والے لاوے کی طرح باہر پھوٹ پڑا۔ اظہر حیات صاحب کے کئی روپ ہیں اور ہر روپ میں پسند کیے گئے۔ بحیثیت معلم شاگردوں کے ساتھ ان کا رویہ دوستانہ رہا۔ پرانے زمانے کے استادوں کی طرح وہ صرف استاد ہی نہیں رہے، مرشدوں والی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ ناول بس ان کے اسی صلاحیت کا آئینہ ہے، اور اس آئینے کے سامنے جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو اظہر حیات صاحب کے مرید کی شکل میں خود کو پاتا ہوں۔ ان تمام معروف و غیر معروف شہیدوں کے نام جنہوں نے مادر وطن کی آزادی کی خاطر تکالیف اٹھائیں اور شہید ہوئے، جن کے ایثار و قربانیوں کی بنیاد پر ہی ہندوستان کی آزادی کا سنہرا منزل قائم و دائم ہے۔ کچھ انند گوپال شیوڑے کے بارے میں۔ آتش فشاں انگریزی ناول دا ویلکنو کا اردو ترجمہ ہے۔ دراصل اس ناول کا ہندی سے انگریزی ترجمہ خود مصنف انند گوپال شیوڑے نے کیا تھا۔ ہندی میں اس کا نام جوالا مکھی تھا۔ انند گوپال شیوڑے کا شمار مجاہد آزادی میں ہوتا تھا۔ وہ قید و بند کی صعوبتوں سے گزر چکے تھے۔ انہیں اس طرح کی تمام دشواریوں کا ذاتی تجربہ تھا۔ 1942 میں انہیں 3 برس جیل میں گزارنے پڑے، جہاں انہیں مہاتما گاندھی کے دستراز سنت ونوبا بھاوے کی قربت میں رہنے کی سعادت ملی۔ ونوبا بھاوے کی شخصیت اور ان کے حالات سے شیوڑے حد درجہ متاثر ہوئے۔ غالباً اس موضوع پر ناول لکھنے کی ترغیب انہیں ونوبا بھاوے سے ہی ملی۔ ناول کا خاکہ شیوڑے نے جیل میں ہی ترتیب دیا تھا۔ جیل سے بری ہونے کے بعد انہوں نے اسے مکمل کیا۔ شیوڑے ہندی کے معروف فکشن رائٹر بھی تھے۔ انہوں نے 9 ناول اور کئی کہانیاں لکھی۔ 1955 میں ان کے ناول مرگجل کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1957 میں جوالا مکھی، جس کا انگریزی ترجمہ دا ویلکینو تھا، اس کو بھی اتر پردیش گورنمنٹ نے انعام سے نوازا تھا۔ اسی دور میں نیشنل بک ٹرسٹ آف انڈیا نے اس ناول کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کروایا تھا۔ شیوڑے کی کئی تخلیقات کا ترجمہ گجراتی، ملیالم، کنڑ، تیلگو، سندھی اور مراٹھی میں ہو چکا ہے۔ ہندی زبان و ادب کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے 1960-61 میں شیوڑے کو آل انڈیا مہاتما گاندھی ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ شیوڑے ہندوستانی تہذیب و ورایت کے علم بردار تھے، لیکن نئی روشنی سے بھی انہیں گریز نہیں تھا۔ وہ ناگپور سے ایک انگریزی روزنامہ دا ناگپور ٹائمز کے چیف ایڈیٹر تھے، جو ایک زمانے میں اتنا مقبول تھا کہ کوئی اس کا ثانی نہیں تھا۔ انند گوپال شیوڑے کے بڑے بھائی کی اہلیہ شریمتی اندومتی شیوڑے بھی مراٹھی کی اچھی ادیبہ تھی۔ انہوں نے غالب کی زندگی پر مراٹھی میں ایک ناول بھی لکھا تھا، جو مراٹھی حلقوں میں خاصا مقبول ہوا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مراٹھی میں مرزا غالب پر ناول لکھنے کے لیے اندومتی شیوڑے نے برادر محترم جناب محمد قمر حیات صاحب سے اردو سیکھی۔ محنت و لگن ایسی تھی کہ بہت کم عرصے میں انہوں نے اردو دانی سے پڑھنے کی استطاعت حاصل کر لی، اردو روانی سے پڑھنے کی استطاعت حاصل کر لی، جس کی وجہ سے وہ غالب پر ناول لکھ سکی۔ اپنی بات۔ 11 جنوری 1916 کو ایک سڑک حادثے میں میرا بایاں پیر فریکچر ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے مجھے
1.5 माह का पलस्तर बांधकर आराम का मशवरा दिया। रिश्तेदार, दोस्त अहबाब और खैर ख्वाह हजरात अयादत को आते, घंटों मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती। वक्त यूं ही गुजर रहा था। मान ख्याल आया कि घर में वक्त गुजारने के बजाय कुछ काम किया जाए। तभी जहन में ये भी ख्याल आया कि 1974 में बीए फाइनल में अंग्रेजी में द वोल्केनो नामी नावल पढ़ा था, जिसके मुसन्निफ हिंदी में अंग्रेजी के मारूफ अदीब जनाब अनंत गोपाल शिवड़े थे। उस वक्त इरादा किया था कि उस नावल का उर्दू तर्जुमा जरूर करूंगा, मगर पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद रोजगार के झमेले में पड़ गया और इसके बाद शादी और बच्चों की जिम्मेदारियों ने यकसुई के साथ कोई काम करने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन नावल को मैंने अपनी निजी किताबों में रख दिया था। जो ही पैर के हादसे की वजह से घर में बैठना नसीब हुआ तो फिर से इस नावल के उर्दू तर्जुमे का ख्याल दामनगीर हुआ। चुनांचा द वोल्केनो का मुताला शुरू कर दिया, साथ ही तर्जुमा भी करने लगा। अभी महज 30 सफ़हात ही तर्जुमा कर पाया था कि घर में गिर गया। इस बार बाएं हाथ पर मुसीबत टूटी। डॉक्टर ने इस पर भी पलस्तर बांध दिया और मजीद 1.5 माह के आराम का मशवरा दिया। अब मैं महज बिस्तर का आदमी बनकर रह गया था, लेकिन तर्जुमे के लिए दिमाग और बायां हाथ तो काम में ही था, सो ये काम नहीं रुका। ज़माने तालिब इल्मी का पढ़ा हुआ नावल उम्र के इस हिस्से में भी कुछ ज्यादा ही लुत्फ दे रहा था। पढ़ता था और उसे उर्दू के कालिब में ढालने की कोशिश करता था। कभी कभार में मैं तर्जुमे के कुछ इक़्तिबासात अपनी अहलिया को सुनाता तो वो भी अपनी पसंद का इजहार करती, जिससे यकीनन तक़वियत मिलती और यकसुई पैदा होती। आहिस्ता आहिस्ता सेहत याब भी हो रहा था और अल्लाह के फजल करम से 30 अप्रैल को इस लायक हो गया कि बगैर किसी सहारे के सीढ़ियां चढ़ने उतरने लगा। कॉलेज, घर और समाजी कामों में मामूल के मुताबिक मसरूफ हो गया। तर्जुमे का काम फिर इल्तवा में पड़ गया। अहलिया ने याद दिलाया और कहा वक्त निकाल कर उसे मुकम्मल कर डालिए। ये तर्जुमा नहीं, तबाजाद महसूस हो रहा है। ये जुमला मुझे हौसला दे गया। फिर यकसुई के साथ उसे मुकम्मल करने की ठान ली। नतीजतन फरवरी के महीने में जो काम शुरू किया था वो जुलाई के महीने में तकमील को पहुंचा। हालांकि तर्जुमा मुख्तलिफ औकात में किया गया है, तहाम कहीं भी तसलसल या ज़बान बयान की यकसानियत मजरू न हो, इस बात का ख्याल रखा है। मुझे अपने उस्ताद मोहतरम मरहूम डॉक्टर मंशाउर रहमान खां मंशा याद आ गए। उन्होंने मेरी तसनीफ लब्बैक पर यह कहकर दाद दी थी कि मियाँ लब्बैक तुमने नहीं लिखी, बल्कि अल्लाह ने तुमसे लिखवा दी। ठीक इसी तरह तर्जुमे का ये काम अल्लाह ने मुझसे ले लिया। कहा जाता है कि तर्जुमा निगारी के लिए ज़बानों पर उबूर हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन मैं बिला तकल्लुफ़ इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि अंग्रेज़ी तो क्या उर्दू भी मुझे ढंग की नहीं आती। क्योंकि नावल की पूरी कहानी 1942 के दरमियान आज़ादी की जद्दोजहद और हिंदुस्तानी माशरे और माहौल पर मबनी है, इसलिए अंग्रेज़ी में होने के बावजूद मुझे अंग्रेज़ी से उर्दू तर्जुमे में कोई ख़ास दिक्कत महसूस नहीं हुई। लफ्ज़ी तर्जुमे से मैंने इज्तनाब करते हुए बामहावरा ज़बान इस्तेमाल करने की कोशिश की है। जिस तरह सलीस और रवा दवा अंग्रेज़ी में नावल लिखा गया है, इसी लहजे और उसलूब को उर्दू के कालिब में ढालने की मकदूर भर कोशिश की है। मैं अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा, ये फैसला आपकी सवाबदीद पर छोड़ता हूँ। बिरादर मोहतरम जनाब मोहम्मद खिदर हयात साहब ने मेरी दरख्वास्त पर पूरे नावल पर नजरसानी फरमाई और न सिर्फ पसंदीदगी का इजहार फरमाया, बल्कि ज़बान बयान की नोक पलक दुरुस्त करने की जहमत उठाई। मैं समीम कल्ब से भाईजान का शुक्रगुजार हूँ। माहनामा अल्फाज हिंद के मुदीर रेहान कौसर ने मसवदे पर नजरसानी फरमाई और मुफीद मशवरों से नवाजा, नीज़ तबात की जिम्मेदारी कबूल की। इस तरह माहनामा किरतास के मुदीर प्रोफेसर इश्ताक कामिल ने मेरी काविश को न सिर्फ बनज़र एहसन देखा, बल्कि बाद अच्छे मशवरों से नवाजा। अल्लाह ताला दोनों हजरात को जज़ाए खैर से नवाजे। अजीज़म प्रोफेसर डॉक्टर रेशमा तज़ीन, सदर शोबे उर्दू LAD कॉलेज नागपुर ने अज़राए हक़ के शागिर्दी मेरा शनासनामा तरतीब दिया और उसे शामिल किताब करने पर इसरार किया। इस कदरदानी और खुलूस व मोहब्बत का मैं कायल हूँ और उनके लिए दिल से दुआ गो हूँ। पटेल प्रिंटिंग प्रेस के मालिक जनाब अनवारुल हक पटेल भी मेरे शुक्रिया के मुस्तहक हैं कि उन्होंने नावल को इन्हिमाक से और वक्त का ख्याल करते हुए शाये किया। जज़ाकल्लाह। मेरी बेटी हुमैरा जबीन अपने शौहर मोहम्मद परवेज के हमरा जिद्दा सऊदी अरबिया में मुकीम है और वो मेरी इल्मी व अदबी मसरूफियात और सेहत के मुतालिक हमेशा फिक्रमंद रहती है। इस नावल की तकमील पर जिस तरह उसने खुशी का इजहार किया, इससे दिल खुश हुआ और बेसाख्ता दिल से दुआएं निकली। मेरी बहुत ही प्यारी पोती सानिया अलमास, बहू अजीज़म उज़मा तहसीन, बेटा अजीज़ी मोहम्मद अरशद हयात और छोटा बेटा अजीज़ी मोहम्मद शाहिद हयात की मौजूदगी से घर जन्नत निशान बना रहता है।
اس کے لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہی خوشگوار ماحول میری ادبی، علمی اور تعلیمی کاوشوں کے لیے وہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اللہ سب کو خوش و خرم رکھے۔ جزاک اللہ فی الدارین۔ محمد اظہر حیات، ناگپور۔ اب آتش فشاں کا باب اول ملاحظہ فرمائیے۔ آج ابھے کمار کا دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا تھا۔ وہ خوش کیوں نہ ہوتا، آج اس کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ لڑکی جس کی شریک حیات بننے والی تھی، جسے وہ عرصے سے اپنے من آنگن میں بسائے ہوئے تھا، اس سے وہ ٹوٹ کر پیار کرتا تھا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ لگتا تھا کہ شاید یہ شادی نہیں ہو سکے گی۔ اس کی محبت میں بے شمار رکاوٹیں آ رہی تھیں، خاص طور سے لڑکی کے چاچا اس کی شادی کی راہ میں سب سے بڑا روڑا بنے ہوئے تھے۔ چاچا برٹش حکومت کے صدر دفتر میں مجسٹریٹ کے عہدے پر فائز تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بھتیجی ایسے شخص سے بیاہی جائے جو انقلابی نظریات کا حامل ہو۔ ابھے کمار ناگپور یونیورسٹی سے ایم اے کرنے کے بعد فلسفہ میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ ابھے کمار ہاتھ کا بنا ہوا کھدر کا کپڑا پہنتا اور خود کو گاندھی کے نظریات کا حامی ظاہر کرتا تھا۔ ایسا لڑکا مجسٹریٹ چاچا کو کیوں کر پسند آتا؟ ان کی خواہش تھی کہ ان کا داماد اعلیٰ ذات اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھنے والا نوجوان جو ان کے جیسے متمول اور معزز خاندان کو زیب دیتا ہو۔ وجیا ایک بھولی بھالی لڑکی تھی۔ وہ اپنے چچا کے خیالات و نظریات سے بالکل انجان تھی۔ جب وہ صرف 1 برس کی تھی تو اس کے والد اسے چھوڑ کر سورگ سدھار گئے تھے۔ ماں کی محبت کے سائے میں ابھی پرائمری اسکول تک ہی پہنچی تھی کہ ماں بھی اسے تنہا چھوڑ کر لوگ سدھار گئی۔ ایسے حالات میں اس کے چاچا اس کے لیے فرشتہ سے کم نہ تھے۔ انہوں نے ہی اس کی نگہداشت کی اور اسے بیٹی کی طرح پالا۔ اسکول اور کالج کی تعلیم بھی انہوں نے بڑے اہتمام سے مکمل کرائی۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی بھتیجی کو اچھا رشتہ آئے گا تو اس کی شادی کر دی جائے گی۔ ان کے مطابق بھتیجی کا شوہر آفیشیل کلاس بالکل نہ ہو جو کمشنر کے عہدے سے ریٹائر ہوگا۔ اس صورت میں دونوں کی زندگی خوشگوار اور باعزت گزرے گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر اپنی بھتیجی وجیا کو ایسے افسروں سے ملواتے تھے جن کا تقرر ابھی ابھی ہوا ہے، تاکہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لیں اور یہ پسند شادی کے بندھن میں بدل جائے۔ وجے کے مجسٹریٹ چاچا کا خیال تھا کہ صحیح معنوں میں ایسا ہو جائے تو گویا انہوں نے اپنا فرض نبھا دیا اور وہ وعدہ پورا کر دکھایا جو انہوں نے اپنے بھائی سے ان کے بستر مرگ پر کیا تھا۔ وجے کی سوچ بالکل مختلف تھی۔ وہ اپنے چاچا کی دل سے عزت کرتی اور انہیں اپنا محسن مانتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ کیا ہوتا اگر چاچا اسے اسکول اور کالج میں نہ پڑھاتے اور اپنے گھر میں اپنی بیوی کا خدمت گزار بنا کر رکھتے، اور جب وہ جوان ہوتی تو اس کی شادی کسی غریب کلرک سے کر دیتے، زندگی بھر مقروض رہتا اور اس کے قرض کو اتارتے ہی اس کی زندگی گزر جاتی۔ لیکن اس کے باوجود چاچا کی یہ خواہش کہ کسی گورنمنٹ افسر سے اس کی شادی ہو منظور نہیں تھی۔ اس کے نزدیک شادی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے، بلکہ اس کے متعلق سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اس کی پرورش عیش و آرام والے ماحول میں ہوئی تھی، پھر بھی اسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی ہے جس کے سر سے ماں باپ کا سایہ بچپن ہی میں اڑ گیا تھا۔ اس میں اس کا کیا قصور تھا کہ قدرت نے اس کے ساتھ ایسا مذاق کیا؟ اکثر وہ یہ سوچ کر مغموم ہو جاتی تھی۔ اس کی اس محرومی نے اسے کچھ زیادہ حساس اور جذباتی بنا دیا تھا، اور کچھ حد تک ضدی بھی۔ شاید یہ خصوصیت اسے اپنی ماں سے ورثے میں ملی تھی۔ وہ ابھے کمار سے محبت کرتی تھی اور اس کے علاوہ وہ کسی کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ابھے ہی اس کا اچھا جیون ساتھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے سہارے زندگی کی لڑائی تنہا لڑ سکتی ہے، خواہ اسے اس کے لیے ساری دنیا سے جنگ کیوں نہ کرنی پڑے۔ چاچا نے دیکھا کہ وجیا اپنے فیصلے پر اٹل ہے تو وہ بھی بادل ناخواستہ نیم رضامند ہو گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وجیا ضدی اور ہٹ دھرم لڑکی ہے، اس کے فیصلے کو بدلنا ممکن ہے، لہٰذا انہوں نے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ وجیا مورس کالج میں سینئر اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ محنتی اور سنجیدہ لڑکی تھی، معمولی شکل و صورت والی جسے پاؤڈر اور میک اپ سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس لیے اس کے ساتھی بھی اس کی طرف کم ہی توجہ دیا کرتے تھے۔ اسے صرف لکھنے پڑھنے کا شوق تھا۔ اس کی بعض کہانیاں اور نظمیں مقامی رسالوں میں شائع بھی ہوتی تھیں۔ اس کا مطالعہ گہرا تھا، خاص طور پر اسے ادب سے دلچسپی تھی۔ وہ کلاس کے بعد اکثر 1-2 گھنٹہ یونیورسٹی لائبریری میں ضرور گزارتی تھی۔ اس کی اس عادت نے اس کی زندگی میں ایسا موڑ لا دیا۔ وہ پہل ابھے کمار سے اسی لائبریری میں ملی تھی۔
अभय चूंकि एक रिसर्च स्कॉलर था, इसलिए वो अक्सर लाइब्रेरी में वक्त गुजारता और किताबों से नोट्स हासिल करता। जब विजय ने अभय को देखा तो उसे उसके अंदर एक मुनफरिद संजीदगी नजर आई और अभय को भी विजय की किताबों से दिलचस्पी की आदत ने मुतासिर किया। इस तरह दोनों एक दूसरे से मुतारिफ हुए, फिर करीब से करीब तर होते चले गए। आमतौर पर लड़कियां पढ़ाई में दिलचस्पी उसी वक्त लेती हैं जब इम्तिहान सर पर आते हैं, वरना रोजाना खाली वक्तों में वो लाइब्रेरी की बजाय खेल के मैदान को तरजीह देती हैं। बाज लड़कियां तो कॉलेज एजुकेशन को अच्छा रिश्ते की तलाश का अच्छा जरिया मानती हैं। इसी नजरिए से वो अपने साथियों को मुतवज्जा करने की कोशिश करती हैं। आमतौर पर शनिचर के दिन क्लास छोड़कर वो दोस्तों के साथ फिल्म देखने या सैर सपाटे पर निकल जाती हैं। बहुत कम लड़कियां कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त जिंदगी का कोई मकसद और टारगेट रखती हैं और उसको हासिल करने के लिए जद्दोजहद करती हैं। लेकिन विजया बिल्कुल अलग किस्म की लड़की थी। उसके चेहरे मोहरे में ऐसी कोई खास कशिश भी नहीं थी। वो ना ज्यादा लंबी थी और न ही बहुत छोटे कद की। उसका रंग रूप भी बस वाजबी था, लेकिन उसकी झील सी ख्वाब आवर आंखें और रेशमी लंबे घने बाल उसकी शख्सियत को बिल्कुल मुनफरिद और पुरवकार बनाते थे। आमतौर पर वो सादा सफेद साड़ी पहनती जिस पर मामूली रंग का ब्लाउज होता, जो उसकी पाकीज़ा शख्सियत को बहुत जेब देता था। कॉलेज के लड़के जो उमूमन दूसरी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते थे, उन्होंने भी विजय के साथ कभी ऐसी जुर्रत नहीं की, बल्कि वो हमेशा उससे फासले से ही बात करते और उसकी इज्जत करते थे। गोया विजय के बातिन की तरह उसका जाहिर भी पाक साफ था। खामोश मिजाजी और संजीदगी उसकी पहचान बन गई थी। अभय कुमार विजय की इन्हीं खूबियों पर फरेफ्ता हो गया। ये वजह थी कि दोनों बहुत जल्द दोस्त बन गए और ये दोस्ती देखते ही देखते ऐसी परवान चढ़ी कि मोहब्बत में तब्दील हो गई। दोनों अक्सर ख्वाबों के जहान में अपनी दायमी खुशियों को तलाश करने लगते। एक बरस भी न बीता था कि दोनों ने अहद पैमान भी कर लिए कि अगर शादी करेंगे तो एक दूसरे से, वरना यूं ही कुंवारे रहकर जिंदगी के दिन गुजार देंगे। ये ख्याल विजय को इसलिए भी आता था कि वो अपने चाचा के मिजाज और पसंद को खूब समझती थी। इसलिए वो सोचती थी कि शायद ही चाचा इस जोड़ को पसंद की नजर से देखें और शादी की इजाजत दें। उसे तो ये डर भी सताता था कि कहीं चाचा ये हुक्म सादिर न कर दें कि तुम अभय को भूल जाओ, क्योंकि उसकी साथ बिरादरी की नहीं है, क्योंकि उसकी जात बराबरी की नहीं है। उस वक्त विजय सोच में पड़ जाती कि ऐसे वक्त में वो क्या करेगी। शायद वो अपने चाचा, उनके खानदान को छोड़ देगी। फिर कभी वो सोचती, नहीं, वो चाचा का दिल नहीं तोड़ सकती, क्योंकि उसकी वजह से ही तो आज वो किसी लायक बन सकी है। उनके एहसानात का कर्ज इस तरह चुकाया नहीं जा सकता। फिर वो ये भी ख्याल करती कि हालात मुवाफिक होने तक हम इंतजार करेंगे और चाचा को राजी करके ही दम लेंगे। इन बातों की भनक चाचा को हुई तो उन्होंने बहुत शिद्दत से उसकी मुखालिफत नहीं की। उन्होंने सिर्फ इस रिश्ते पर नापसंदगी का इजहार किया और उसके लिए कोई खास दलील या वजह भी नहीं बताई। फिर बहुत जल्द अपनी रजामंदी भी जाहिर कर दी। शायद चाची ने उन्हें राजी किया हो और कहा हो कि आखिर विजया पढ़ी लिखी जवान उम्र लड़की है, उसको अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक है। फिर हम कौन होते हैं उसकी पसंद पर अपनी मर्जी थोपने वाले। अगर हमने मना किया और कुछ गलत हो गया तो हमें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी हम पर आएगी। इसलिए शायद चाचा ने इस मामले में सर्द मोहरी इख्तियार कर ली हो। चाचा अभय को नापसंद भी नहीं करते थे। वो लंबा तड़ंगा, गोरा चट्टा, खूबसूरत नौजवान था। उसका सराफा खूबसूरत, दिलकश और जाजिबे नजर था। वो बहुत गरीब था। उसके वालिद प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। जब अभय बहुत छोटा था, उसके वालिद का साया सर से उठ चुका था। उसकी गरीब माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसने बेशुमार मुश्किलात का सामना किया। सबसे बड़ी मुश्किल उसके लिए गुर्बत ही थी। वो घरों में काम करके कुछ पैसे कमाती और मामूली तौर से गुजर औकात करती, लेकिन उसे अपने बच्चे की तालीम और तरबियत की हमेशा फिक्र रहती थी। जैसे तैसे अभय कॉलेज तक पहुंच गया और इसमें कोई शक नहीं कि अभय का तर्ज जिंदगी अब कुछ बदल भी गया था, लेकिन विजय के लिए ये सब कुछ बेमानी था। नौजवान अभय में एक ही कमी थी कि वो गवर्नमेंट अफसर नहीं था, जिसके बगैर बकौल चाचा जिंदगी में कोई मजा नहीं था। इसके बावजूद चाचा ने उन दोनों की शादी के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। उसके लिए विजय उनकी बेहद शुक्रगुजार थी। आखिरकार अभय और विजय की शादी हो गई। शादी इंतहाई सादगी के साथ हुई। चाचा तो हैरत में थे कि इतने कम पैसे में शादी निपट गई। दरअसल अभय एक समाज सुधारक था। वो अक्सर लोगों को शादी ब्याह पर फजूल खर्ची से मना करता था। उसकी शादी उसकी बेहतरीन मिसाल बन गई।
विजया खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसने जिस दिन से अभय को देखा था, उसे दिल ही दिल में अपना सरताज तस्लीम कर लिया था। वो मन ही मन उसकी पूजा करती और उसकी मोहब्बत में हमेशा शर्राबोर रहती थी। वो उसकी खिदमत को अपनी खुशकिस्मती समझती, अपने अंग अंग में उसकी खुशबू महसूस करती। उसका दिल भगवान की उस कदर मेहरबानी का शुक्रिया अदा करते नहीं थकता था। अभय भी मोहब्बत के महराज पर पहुंचकर खुशी से झूम रहा था। विजय से बेपनाह मोहब्बत ने उसे गैर मामूली कुव्वत और खुद एतमादी बख्शी थी। वो विजय को अपनी कुव्वत का सरचश्मा मानता था और विजय भी उस पर जान निछावर करती थी। उसका ख्याल था कि कुछ पाने के लिए जान की बाजी लगाना, और वो भी बिला शर्त, दरअसल मसरत और शादमानी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। इस तरह उनकी जिंदगी खुशी वो इम्तियाज से लबरेज हो गई थी। दोनों एक दूसरे का खूब ख्याल रखते। कई मौकों पर जब दोनों अकेले होते, तब भी उन्होंने अखलाकी हुदूद पार करने की कोशिश नहीं की। वो अपनी पाकीज़ा मोहब्बत को अमर बनाना चाहते थे। क्या कोई गुनाह का तस्वुर करके मंदिर में पूजा करने जाता है? जब ब्राह्मण अग्नि के इर्द गिर्द शादी के मंत्र पढ़ रहा था और जोड़े को साथ मरने जीने का हलफ दिला रहा था, तभी अचानक खबर आई कि जापान ने ब्रिटिश के 2 जहाजों को सिंगापुर में गर्क आफ कर दिया। गोया जंग हिंदुस्तान के दरवाजे पर खड़ी थी। बाप दूसरा। जब शादी की तमाम रस्में पूरी हो गई और मेहमान रवाना हो गए, अभय कुमार ने कहा, विजया, सबसे पहले हमें माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। दोनों माँ के चरणों को छूने के लिए झुक ही रहे थे कि माँ ने कहा, नहीं, पहले घर के मंदिर में जाओ और भगवान के आगे माथा टेको, आरती उतारो और आशीर्वाद लो। इसके बाद मेरे पास आओ। भगवान की कृपा ने ही हमें ये अच्छे दिन दिखाए हैं। नया शादीशुदा जोड़ा घर में बने मंदिर में दाखिल हुआ। वहाँ बड़ी अकीदत से घी का चिराग जलाया और पूजा करने लगे। उनका दिल मसरत से लबरेज था और आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे। वो इस शादी को अपनी मोहब्बत की जीत मानकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। दोनों हाथ जोड़कर कह रहे थे कि भगवान, तू कितना दयालु और मेहरबान है। तेरी कृपा के बगैर हमें ये मसरत भरा लम्हा कभी मैसर न आता। भगवान, तूने हमें जन्मों जन्मों के आशीर्वाद से नवाजा है। हम तेरे एहसानमंद हैं और यही तमन्ना करते हैं कि दूसरे जन्म में भी हम इसी तरह एक दूसरे का साथ निभाते रहें। हम यकजान दो कालिब बने रहें और तेरा शुक्र अदा करते रहें। इसके बाद दोनों ने कापूर जलाया, उसे निरंजन में रखा और आरती गाने लगे। अचानक निरंजन गिर गया और कापूर बुझ गया। विजया का दिल धक से हो गया। बेसाख्ता उसके हलक से चीख निकल पड़ी। वो उसे बदशगुनी महसूस कर रही थी। उसका दिल किसी अनहोनी पर जोर जोर से धड़कने लगा। बाप तीसरा। माँ का आशीर्वाद लेने के बाद दोनों अपनी ख्वाबगाह की तरफ चले गए। अब दुल्हा दुल्हन कमरे में अकेले थे। तभी विजय ने कहा, अभय, निरंजन समाधान के गिरने से मुझे बदशगुनी का खदशा महसूस हो रहा है। डरपोक लड़की। ये कहते हुए अभय ने विजय को अपने बाजुओं में जकड़ लिया और कहा, इसमें बदशगुनी वाली बात क्या है? पूरी दुनिया सुलग रही है, इंसान इंसान को मार रहा है, हुकूमतों के तख्त उलट रहे हैं, दुनिया के नक्शों में तब्दीलियां हो रही हैं और इंसानियत बर्बादी के दाहने पर खड़ी है। अब हमारे साथ इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है? लेकिन जंग तो अब भी हमसे कोसों दूर है, विजय ने कहा। लेकिन आज का बदशगुनी का वाकया तो हमारे बहुत करीब है। सोचो, अगर हमारा घर बसने से पहले ही उजड़ जाए तो क्या होगा? तुम कैसे कह सकती हो कि जंग हमसे दूर है? अभय ने पूछा, क्या तुमने नहीं सुना कि जापान ने सिंगापुर पर हमला बोल दिया है? गोया अब वो हमारे दरवाजे खटखटा रहा है। हम महफूज हैं इस वक्त तक जब तक जंग यूरोप तक महदूद है, लेकिन ये अब तो मशरिक़ वस्ता तक पहुंच चुकी है। हम हिंदुस्तान में उसकी आहट महसूस कर सकते हैं। हम अपने आप को किस हद तक इस जंग से बचा सकते हैं, लेकिन हम अभी तक जंग में मुलविस नहीं हुए हैं। विजय ने बहस करते हुए कहा, हमारे कौमी रहनुमा तो कह रहे हैं कि जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती तब तक हमारा देश इस जंग में हिस्सा नहीं लेगा। क्या तुम्हें इसका यकीन है कि ब्रिटिश वाइसराय पहले ही कह चुके हैं कि हिंदुस्तान का इल्हाक ग्रेट ब्रिटेन से है? हमसे कभी किसी ने मशवरा नहीं लिया और न ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी रहनुमा ने इसकी हामी भरी है। इससे साबित होता है कि हम ब्रिटिश के गुलाम हैं। गोया हर हिंदुस्तानी की राहें कांटों भरी है। अभय ने बिला झिझक अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। हर हिंदुस्तानी की राहें खारदार नहीं है अभय, विजय ने कहा। तुम किस तरह इन छोटी छोटी पार्टियों को समझाओगी?
जो खुद रौ पौधों की तरह पैदा हो गई हैं, और इधर हिंदुस्तानी अफसर जंग में उनकी मदद कर रहे हैं। अगर तुम तमाम हिंदुस्तानी उनकी मदद से इनकार कर दें तो मुट्ठी भर अंग्रेजों को यहाँ हुकूमत करना दुश्वार हो जाएगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम हिंदुस्तानी इस गैर मुल्कियों की मदद करते हैं, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्त हम पर मजबूत तर होती जा रही है। गांधी जी को भी इसका एतराफ है। हवा ऐसी मखदूश है कि हम हिंदुस्तानी खामोश तमाशाई बने हक्का बक्का खड़े हैं, जबकि वो जंग के नाम पर हमारी औरतों के साथ बदसलूकी और बदतमीजी करते हैं। हमारे लबों पर मोहरें लगी हैं, हमारे कलम पर जंजीरें पड़ गई हैं। हम न जिंदा रह सकते हैं न इज्जत से मर सकते हैं। उसी जंग को देखो, ब्रिटेन और फ्रांस में फूल जैसे मासूम और नाजुक नौजवान अपनी आज़ादी के लिए जंग की बाजी लगाए हुए हैं, लेकिन अफसोस हम कुछ नहीं कर सकते। हम इतने बेयारो मददगार हैं कि इस इनकलाब और तगय्युर में हम कोई हिस्सा नहीं ले सकते। आज सारी दुनिया आईने नौ के लिए लड़ रही है और तर्ज कुहन को उखाड़ फेंकना चाहती है। हम महज इसलिए जिंदा हैं कि हमें मरने की इजाजत नहीं है। आखिर हम ये जिल्लत कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? हिंदुस्तानी दानिश्वरों, वलियों और साधु संतों की कदीम धरती है। तारीख शाहिद है कि इस पर ऐसा दिन कभी नहीं आया था कि धरती इतनी मजबूर हो गई हो। पूरा मुल्क नहकता है अभय, पूरे हिंदुस्तान में कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा है छाया है। ये तूफान से पहले की खामोशी है। क्या होने वाला है अभय? अब बगावत होगी, हिंदुस्तान में शोले भड़क उठेंगे और ब्रिटिश अंपायर को घेर लेंगे। ये शोले बेशुमार जाने तल्फ होंगी, लेकिन तामीर के लिए तखरीब भी जरूरी है, और यहीं से एक नया हिंदुस्तान नमूदार होगा और हमारी सारी कुर्बानियों की कीमत वसूल हो जाएगी। लेकिन क्या हम ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, जबकि हमारे दरमियान लालची, खुदगरज, रजील और बेईमान लोग मौजूद हैं? कौन कहता है कि हम इसके लिए तैयार नहीं? अभय अपने बिस्तर पर ही उछल पड़ा। वो खड़ा हो गया और जिस तरह पिंजरे में शेर फड़फड़ाता है, इस तरह वो कमरे में जल्दी जल्दी टहलने लगा। गांधी जी से ज्यादा हमारे मुल्क को और कौन समझ सकता है? उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। मेरी तरह लाखों हिंदुस्तानी अपने देश के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं। मुल्क के लिए जान की कुर्बानी से बेहतर क्या नजराना हो सकता है? मौत का जिक्र सुनकर विजया लरस गई। आज उसकी सुहाग रात है और आज की रात ही क्यों मौत की बात हो रही है? अचानक फिर से शमादान का गिरने और काफूर के बुझने की बदशगुनी याद आ गई। भगवान जो भी करता है तुम्हें इख्तियार है, मगर इतना जरूर करना कि हमारे मिलन को गहन न लगे और अभय को किसी मुसीबत में न डालना। अभय मेरी जिंदगी का उजाला है। वो मन ही मन में कह रही थी कि उसे भगवान इस किरण को ऐसा शोला बना जो रोशनी के काम आए, जिससे चार सू उजाला हो जाए। उसको कौन बचा सकता है जो खुद अपने घर को जलाना चाहे? उस वक्त उसकी नजर शौहर पर पड़ी, जो बहुत मुस्तरिब और गहरी सोच में डूबा हुआ था। विजय को सख्त धचका लगा, उसकी रूह तक कांप गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके अभय से कहा, डार्लिंग, अब हमें सो जाना चाहिए, बहुत देर हो रही है। इसे फिक्र हो रही थी कि अगर इस तरह वो बातें करते रहे तो सारी रात बैठे ही रह जाएंगे। उसका दिल शौहर की हालत पर पसीज गया। उसने उसको अपनी बाहों में भींच लिया, उसके सर को अपने पहलू में छुपा लिया और उसे सहलाने लगी। उसने महसूस किया कि अभय का सर गर्मी से तप रहा था, शायद मुसलसल बात करने से ऐसा हुआ हो। उसने महसूस किया कि उसके जज्बात की सारी बंदिशें खुल गई थीं। उसने अपने मोहब्बत से शौहर को सरशार कर दिया, खुद भी प्यार के अथाह समंदर में गोते खाने लगी और मदहोश हो गई। उसी आलम में उसने अभय का सर ऊंचा किया और उस पर अपने लब सख्त कर दिए और बोसों की बौछार कर दी और आज सारा हिसाब चुकता कर देना चाहती थी। अभय ने उसकी आंखों में आंखें डाली और उसे गोद में भरकर उस पर बरस पड़ा। उस वक्त उसने इत्मीनान का सांस लिया और आंखें बंद कर ली। फिर दोनों ऐसे समंदर में मौजजन हो गए जिसका कोई और छोर नहीं था। बाब चौथा समाप्त फरमाइए। जब दिसंबर 1941 में जापानी अफवाज ने ब्रिटिश के 2 जहाजों को सिंगापुर में गर्क आब किया, उस वक्त हिंदुस्तान ने पहली दफा महसूस किया कि जंग उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मशरकी साहिल पर जबरदस्त खौफ, हरास और वहशत का माहौल था। खासतौर पर बंगाल उससे ज्यादा मुतासिर था। कलकत्ता खाली हो रहा था। माहौल में अनजान सा सन्नाटा और बेइत्मीनानी छाई हुई थी। लोग हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते थे। वो खुद को बेसहारा महसूस कर रहे थे। वो कुछ
کرنا چاہتے تھے وہ خود کو دوسروں سے کب تک الگ تھلگ رکھ سکتے تھے؟ دنیا انقلاب کی منتظر تھی اور اس کے آثار شروع ہو چکے تھے۔ قدیم زمانہ لد چکا تھا اور نئے زمانے کی تکلیف دا آمد تھی۔ ترقی کی اس دوڑ میں کیا ہندوستانی اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے؟ اور کیا ان کا نام تاریخ کے صفحات پر نہیں لکھا جانا چاہیے؟ پھر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ویسے تو وہ اپنی حیثیت صفر ہی سمجھتے تھے۔ ان کا ملک خواہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، دقیانوسی رسم و رواج کے تلے وہ دبے جا رہے تھے۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا ہندوستان سے روشنی حاصل کرتی تھی، لیکن آج اس کی کیا حالت تھی؟ مٹھی بھر انگریز ہندوستانیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک رہے تھے، حالانکہ ان کے پاس بھی عظیم رہنما تھے، قلمکار، فنکار اور دانشور تک موجود تھے، لیکن ان کی کون پرواہ کرتا تھا؟ وہ کس شمار میں تھے؟ وہ تو ایک غلام ملک کے باشندے تھے۔ انگریزوں نے تو حد کر دی کہ عوام سے بغیر پوچھے یہ اعلان کر دیا کہ ہندوستان جنگ میں اس کے ساتھ ہے، جیسے ہندوستانی محض سامان کا بکسا تھے اور ان کی کوئی رائے، کوئی سوچ اور کوئی فکر نہیں تھی، اور نہ ہی ضمیر نام کی کوئی چیز ان کے پاس تھی۔ وہ دبے کچلے رذیل اور بے ضمیروں کو کون پوچھتا تھا؟ ان کی کیا حیثیت تھی؟ سفید فام معمولی فوجی زیادہ معزز تھے، لیکن اس ملک میں گاندھی کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ لاچار و مجبور تھے، پورا ملک بے جان نظر آتا تھا اور گویا قبرستان سے سناٹے کا ملک پر راج ہو۔ دنیا میں چل رہے ڈرامے میں ہندوستان کیا رول ادا کر سکتا تھا؟ اس کے لیے وہ مضطرب اور بے چین تھے۔ انہیں صرف یہ مغالطہ تھا کہ وہ آزادی اور جمہوریت کے حصول کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے تھے، انہوں نے محض اس لیے ہتھیار نہیں اٹھائے تھے کہ جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر کے اس کی آزادی پر شب خون مارا۔ کیا یہ خون ریزی پولینڈ کی آزادی کے حصول کے لیے نہیں تھی؟ پھر برطانیہ ہندوستان جیسے عظیم ملک کی آزادی کو کیوں دبا کر بیٹھا تھا، جبکہ وہ خون کا ایک قطرہ بہائے بنا نہیں انہیں آسانی سے آزاد کر سکتا تھا۔ انگلینڈ محض وعدے پر ہی ٹر کھاتا تھا۔ ہندوستان کب تک اس پر بھروسہ کر سکتا تھا؟ شاید یہ انگریز ہندوستانیوں کو غدار سمجھتے تھے، جبکہ آزادی کی خاطر وہ ہر طرح کے سمجھوتے کے لیے تیار تھے، اور اس کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی بہانے سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ تمام دلیلیں بے سود تھیں۔ برٹش حکومت کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ ہندوستان دنیا میں رونما ہونے والے انقلاب میں اپنا رول ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن حکومت برطانیہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ اس کے برخلاف ہندوستانیوں پر ان کا شکنجہ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا تھا اور سمجھوتے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ حالانکہ انگریز کہہ رہے تھے کہ جنگ کے خاتمے پر وہ اپنا وعدہ پورا کر دیں گے، مگر ہندوستانی کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اب لفاظی ختم کی جائے اور اپنے وعدے کو عملی جامہ پہنائے، لیکن انہوں نے عمل سے گریز کیا۔ اس طرح حکومت برطانیہ اور ہندوستانیوں کے درمیان خلیج اور دوری مزید بڑھ گئی اور ناامیدی اور گھٹن میں اضافہ ہونے لگا۔ گاندھی کا خیال تھا کہ اگر یہ گٹھن یوں ہی طاری رہی تو ہندوستان محض ایک سمادھی بن کر رہ جائے گا، صرف اور صرف لاشوں کا ایک دیش۔ اگر ایسا ہوتا تو یہاں کبھی زندگی بحال نہ ہو سکے گی۔ خوف و ہراس اور مایوسی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ کوئی بھی برٹش حکومت سے پنگا یعنی دشمنی لینا پسند نہیں چاہتا تھا۔ کوئی بھی برٹش حکومت سے پنگا لینا نہیں چاہتا تھا۔ دوسری طرف کچھ لوگ جنگ میں برٹش کی مدد کرنے کے لیے بے چین تھے، خاص طور سے بے روزگار نوجوان اس میں پیش تھے کہ انہیں جنگ کے بہانے کام مل جائے گا۔ تاجر سونے کی طرح بھاگ رہے تھے۔ گورنمنٹ آفیسر جنگ میں ہر ممکنہ مدد کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان کی نظریں محض نوکریوں میں ترقی اور خطاب حاصل کرنے پر تھیں۔ ملک میں مہنگائی آسمان چھو رہی تھی اور خورد و نوش کی ضروری چیزوں کا قحط برپا تھا۔ غریب ہندوستانی عوام قحط سالی اور بھوک مری کا شکار ہو رہے تھے۔ افراط زر کا راج تھا اور لوگ پیسے کے پیچھے بھاگے جا رہے تھے۔ وہ اتنے گر گئے تھے کہ اناج میں مٹی ملا کر پیسہ کمانے سے بھی چوک نہیں رہے تھے۔ ان کے خیال میں ایسا سنہری موقع انہیں دوبارہ نہیں ملے گا۔ لوگ پیسوں کا ڈھیر لگانے پر تلے تھے کہ نہ معلوم کل انہیں یہ موقع ملے نہ ملے۔ پرمٹ، کانٹریکٹ، رشوت اور خوشامد گویا دولت کی لالچ میں ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے تھے۔ سپاہیوں کے لیے سماج کی عورتوں نے پردہ طاق پر رکھ دیا اور ان کے لیے کینٹین چلانے کے کام میں لگ گئی تھیں۔ ان کے لیے زیورات، اونی کپڑے، بینڈ، کتابیں وغیرہ جمع کی جا رہی تھی۔ میوزک، ڈانس اور تفریح کے سامان ان کے لیے مہیا کیے جا رہے تھے۔ آج سپاہی ہی ان کے بھگوان تھے۔ ان کی ہی پوجا کرو اور ان کو خوش کرنے کے لیے ہر کام کرو۔ اس زمانے میں بس یہی
जज्बा कार फरमा था। अगर गैर मुल्की सिपाही औरतों को छेड़े तो उसे बर्दाश्त करो, क्योंकि यही उनके चूल्हों और घर की हिफाजत करने वाले थे। वो जितनी भी बेइज्जती करते, उन्हें कितना ही जलील करें, वो बस खामोश रहें, क्योंकि तमाम चीज़ों से ज़्यादा जंग की अहमियत थी। वो ये सब तमाशा हो रहा था, मगर हमारे शहरियों का खून खौलना तो दरकिनार, वो मुंजमद और बेहिस हो गया था। गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि पूरा देश कब्रिस्तान बन चुका था। आदमी आदमी का दुश्मन था, उनका बर्ताव जानवरों जैसा था। अगर उसकी असलियत और रूहानियत को न बचाया गया तो उसे कभी बचाया नहीं जा सकता। और वो लोग जो हिंदुस्तान को कमजोर करने का गुनाह अजीम कर रहे थे, उन्हें गांधी जी ने ललकारा और कहा, हिंदुस्तान छोड़ो। हुक्मरानों की जानिब से सबसे पहला रद्द अमल था तशद्दुद। गांधी जी को क्या हो गया था? क्या वो पागल हो गए थे? क्या अहमकाना और बेवकूफाना हरकत थी? जापानी फौजें हिंदुस्तान के दरवाजे पर खड़ी थी और गांधी जी उन महाफिजों से कह रहे थे कि हिंदुस्तान छोड़ो। क्या वो शोलों में कूदना चाहते थे और खुदकशी करना चाहते थे? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। इंग्लैंड हिंदुस्तान को बचाना चाहता था और वो हर कीमत पर ऐसा ही करेंगे। वो किसके लिए हिंदुस्तान की हिफाजत चाहते हैं? अपने लिए? हिंदुस्तान पूछ रहा था। ब्रिटिश का जवाब था कि हिंदुस्तान को जापानियों के चुंगल से बचाना चाहते थे। जापानी वहशी और दरिंदा सिफत थे। उनके जेर हुक्मरानी हिंदुस्तान बेमौत मारे जाएंगे। जापानी बहस व तकरार के आदी नहीं थे, वो सिर्फ मारना जानते थे और वो हिंदुस्तान के जानी दुश्मन थे। गांधी जी ने कहा, दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। जापानी दुश्मन नजर आ रहे थे, क्योंकि तुम बरतानिया हमारी सरजमीन पर मौजूद हो। हमने किसी मुल्क का क्या बिगाड़ा है? तो फिर क्यों कोई हमारा दुश्मन क्यों कर हो सकता है? तुम चाहते हो कि जो तुम्हारे दुश्मन हो वो हमारे दुश्मन भी हो। एक बार तुम हिंदुस्तान छोड़ दो, हमारा कोई दुश्मन न रहेगा। अगर कोई हुआ भी तो हम उससे निपट लेंगे। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों इसकी फिक्र कर रहे हो? गैर मुल्की हुक्मरानों ने उसे साजिश और पीछे से वार करने के मुतरादिफ बताया। वो एक नाजुक दौर से गुजर रहे थे। गांधी चाहते थे कि ऐसे वक्त में वो हिंदुस्तान छोड़ें। अगर उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ दिया तो वो जर्मन से किस तरह लड़ सकेंगे? इसका मतलब ये था कि हिंदुस्तान को उसकी परवाह नहीं थी कि इंग्लैंड के शहर दुश्मनों के बमों का निशाना बने और बर्बाद हो जाएं, या उनकी औरतें बेवा हो जाएं। ये सरासर गद्दारी, बेवफाई और जुल्म था। वो हिंदुस्तान को जरूर सबक सिखाएंगे। हिंदुस्तानियों को उसकी फौलादी पंजों का मजा चखना होगा। चर्चिल ने ऐलान कर दिया कि बागियों के साथ कोई मुरव्वत नहीं होगी। अगर जरूरी हुआ तो मशीन गनों से उन्हें भून दिया जाएगा। बगैर जुल्म तशद्दुद के उन्हें समझ में नहीं आएगा। बहरहाल कौमी हलकों में गांधी जी की तहरीरों से ने उन शोलों को खूब हवा दी। ठहरा हुआ आतिशफिशां जो उनके दिल में ठाटे मार रहा था, बाहर निकलना चाहता था और बेचैन था कि कब फूट पड़े। अभय कुमार गांधी जी और उनके साथियों की तहरीरें पढ़कर, तकारीर सुनकर भड़क जाता था और बेहद जज्बाती हो जाता था। वो विजय से कहता कि देखो, इनकलाब ने हमारे मुल्क में भी दस्तक दे ही दी। तारीख हमारी आंखों के सामने बनने वाली। ये जिंदगी और मौत की जिद्दोजहद है। हम मरें या जिएं, क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए यही काफी है कि हम शहाबे साकिब की तरह चमके और घुप अंधेरे में गुम हो जाएं। तुम क्या करने जा रहे हो? अभय विजय ने पूछा। गांधी जी क्या कहते हैं? वो तना शख्स हैं जो कौम की नफ्स पहचानते हैं। उनके नजदीक निजात का एक ही रास्ता है कि अगर जरूरत पड़े तो हम शोलों में कूद पड़े। इसमें कोई हर्ज नहीं। उसी दिन उसने गांधी जी को एक खत लिखा। उसने लिखा, आपके दम से करोड़ों लोगों की सांसें चल रही हैं। आपकी धड़कन हिंदुस्तानी अवाम के दिलों की धड़कन है। सदियों के इंतजार के बाद आप राम और कृष्ण के अवतार बनकर आए हैं। आप क्या जानते हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हिंदुस्तानियों की आत्मा को आप खूब पहचानते हैं। हमें मार्च करने का हुक्म सादिर कीजिए। मेरी तरह हजारों नौजवान इसके लिए तैयार हैं। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। गांधी जी ने फौरन जवाब दिया, सब्र करो, वक्त आ रहा है, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब गांधी जी का खत अभय को मिला तो वो खुशी से नाचने लगा और चिल्लाने लगा, विजय देखो, गांधी जी ने खुद ये खत लिखा है। इतना खुशकिस्मत हूं मैं। इस खत को हिफाजत से रखो, ये जान से ज्यादा कीमती है। जब उसने वो खत अपनी माँ को दिखाया तो माँ ने कहा, ये खत मुझे दे दो, मैं उसे हिफाजत से पूजा वाली किताब में रखूं।